Action. हंस के चालू कर। ऐसा नहीं कि चट मंगनी पटबिया वाला जैसा होता है ना, वो एकदम से फट से सब समझ जाए, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट दैट इजी. ओवररेटेड फॉर मी, बट You should have only one best friend. इट्स ओके, दैट्स ओके. बफर हो रहा है दिमाग में. करेक्ट. तो उस हिसाब से हम You know, there is this term that I came across recently. It is energy sucking vampire. I know. बहुत करते जाओ अच्छे वही, से हमारा जो भी it is not personality. something that parents need to teach. It is not something that comes in books. नींद आ रहा है कि क्या मेरा बॉडी मेरा माइंड सो गया है. Hello everyone, welcome to second episode of Tea with Coffee. मैं हूँ आपकी होस्ट अपराजिता and today we have yet another engineering gifted aka soul sister Asmita Gharat. So as you already know about this channel, we talk about a little bit of this and a little bit of that. So today we are going to talk about life, friendships, decoding myths and much more. Before anything else, do make sure to subscribe to the channel because जितना आप subscribe करेंगे हम उतना channel grow करेंगे and जितना channel grow होगा आपके लिए आपका favorite content deliver हो पाएगा. Without wasting any more time, let's get into spilling some tea while we sip some coffee with Asmita. Yes. ठीक है. So hi, how are you? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं honestly. How are you? I'm good. चल रहा है. अभी फिलहाल थोड़ा स्लो हो गया है जिंदगी. बट ठीक है. ओवरऑल इट्स फाइन. तू कैसी है? Good. Fine as wine. No, we talk about coffee here. Yes, coffee. So आज का episode is all about, you know, that friendly sisterhood talk. So we'll talk about friendships, college life, dynamics, and we'll also decode certain myths about friendship and life. Sure. So starting with that, do you remember हमारा friendship कैसे start हुआ है? I would like to thank someone जिसका who shall not be named. या वो भी होना ही था, नहीं तो फिर हम कैसे मिलते. हाँ, Because like it अपना- wasn't very natural kind of natural नहीं friendship. था, बट क्योंकि हमारा branches भी अलग थे. Yeah, So because of certain good people, people good and other people. all kinds of people. But yeah, the outcome is very nice. I like this. I think Touch wood. My God. Yeah. I think हमारा fashion show था कॉलेज का. I think in second year मैंने participate किया correct. था second year में. उसके मेरा बाद सिंगिंग था, तेरा फैशन शो था. हाँ, बट तभी हम ऑफिशियली मिले नहीं थे. आई थिंक आफ्टर द इवेंट, हाँ, we were just hanging पार्टी out. वाला. हाँ, वही हैंगिंग आउट वाला. सब ऐसे एक बार बाय बाय होने के पहले we just were sitting there somewhere and then we were started talking हाँ. eventually. वही. उसके भी बहुत दिन बाद we actually went out together and then it was the bonding type. वो तो first interaction I think that was हाँ, वो the था. first day. फिर बाद में कॉलेज में ऐसा हाय हेलो hi, एंड hello कैजुअल था. था बिकॉज वी डिडंट एक्चुअली गेट टू टॉक. हाँ, क्योंकि क्या ही बात करते. थोड़ा हाँ, नोइंग वो था कि चलो शक्ल मालूम है, ब्रांच मालूम है, एक सर्कल है, चल ठीक है, दैट्स फाइन. बट अदर देन दैट आई थिंक वो लाइक few months later when we met, suddenly I called you. Friendship day का दिन था I think, and I called you कि क्या कर रही है आज. When we met, फिर थोड़ा अच्छा that लगा. day was the proper bonding Correct, day. It was a good thing. अच्छा था. And considering you and me, we are totally different personalities. करेक्ट. So you think कि friendships थोड़ा like जैसे बोलते हैं ना relationship wise भी कि नहीं opposites attract. हाँ, होता है. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दो अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं ना इनटू द पिक्चर. तो कभी ऐसा होता है कि अगर कोई एक पर्सन एक सिचुएशन एक तरीके से देख रहा है तो उसको और एक अलग एंगल का जरूरत है. बिकॉज उसको फिर वो चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए Balance हो जाता है बैलेंस भी थोड़ा. होता है. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि वो शायद से बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर देता है क्योंकि अपोजिट्स
do attract. हाँ, do attract, I feel. Because there's, you know, something is missing in your personality, which is not ऐसा कि हाँ missing, oof my god, ऐसा नहीं. हाँ. Like there are certain things that balance out करते हैं, एक वही दूसरे का वही. personality हाँ, वो हाँ, balance out हो जाता है. करेक्ट वो भी सही है. और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप्स जितने नेचुरल हो उतने अच्छे हैं. ऐसे नहीं कि कोई ढूंढने जा रहा है कि चलो मुझे अभी दोस्त बनाना है, चलो ये दिख रही है, इससे अप्रोचेबल दिख रही है. Forced friendships are not good. क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि एक पर्सन प्रिटेंड करने लग जाता है. It falls out eventually क्योंकि वो efforts फिर match नहीं होता ना, because in the start you are very much in that phase कि 100% 110 देना है, वो bestie BFFs forever. वैसे नहीं होता है. Coming from that, do you think BFFs forever is a thing? मुझे लगता है जैसे हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स भी ग्रो होती है, हम एज अ पर्सन चेंज होते हैं. तो मुझे लगता है कि BFF एक ही पर्सन के साथ थोड़ा मुश्किल है, बट इफ वी मेंटेन इट तो अच्छा ही है. I think कि the tag is very dynamic tag, you know. What is BFF honestly? Best friend forever. मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है कि closest friend कौन है? हाँ. जिससे I can share more. जिससे comfortable हो. Best friend is very, you know, I find is overrated है सच्चे में. क्योंकि कुछ close friendship I think matters more. हाँ. ऐसे हमारे भी लाइफ में ऐसे अलग अलग फ्रेंड्स है जो जिनके साथ हमारा अलग अलग बॉन्ड है. करेक्ट. किसी से कुछ चीज शेयर करते हैं, किसी से कुछ चीज, एंड बॉन्डिंग इज डिफरेंट. विद समवन आपका एनर्जी लेवल हाई होता है बहुत, किसी के साथ समवेयर यू आर द हायर एनर्जी पर्सन, समवेयर यू आर द लोअर एनर्जी पर्सन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. करेक्ट. कभी कभी कुछ लोग सिर्फ या फ्रेंड्स हैंग आउट करने के लिए एकदम बढ़िया कि भाई मजा आ रहा है, 2 घंटे के लिए जो मिल रहा है, दैट इज परफेक्ट टाइम टू मीट. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बाबा वेंट आउट करना है बिकॉज दैट पर्सन इज अ गुड लिसनर. यस. तो वो थोड़ा कि जरा आराम से कैजुअल टॉक. बट दिस इज यू कैन डू फॉर योर एक्चुअल गुड फ्रेंड्स. देयर इज दिस टर्म दैट आई केम अक्रॉस रिसेंटली. इट इज एनर्जी सकिंग वैम्पायर. आई नो. So what exactly that means, मेरे को तो पढ़ना पड़ा because I did not actually know these kind of people exist. Okay. So you know, even we think we know certain people like this जो उनको खाली चाहिए कि you just listen to their anxiety and that's all. They don't want any help. They don't want any advice. They just want to keep ranting about the same thing again and they do not want to work on it. They want to cry about it in a like, you know, sadistic pleasure. Correct. So these are the energy sucking vampires which I learned over the period of time कि नहीं भाई, we should थोड़ा, because it is somewhere affecting our own sphere of, you know, if you are in a good space and you have a good set of thoughts, you get affected because maybe you are not just listening for listening. तो तुम्हें भी अफेक्ट हो रहा है. ऑफ कोर्स अभी देख जैसे इफ यू मीट अ पर्सन, चलो यू आर फुल हाइप्ड अप, मिलेंगे आज ये करेंगे, एंड देन व्हेन यू कम बैक होम ऐसा लगता है कि अरे मैं तो रिचार्ज होने गई थी, ये क्या हो गया. I drained out myself. And you feel sad about it somewhere. एंड फिर उनके ही वजह, नॉट पॉइंटिंग आउट, बट ऐसा लगता है कि their problem becomes our problem. Your problem more, exactly. And in a friendship it's good, but कभी कभी ऐसा होता है कि it's affecting our personal health also and life also. Especially because वो आगे वाला उस चीज को चेंज करने के लिए नहीं बात कर रहा है. It's not like they do not want help. They just want someone to cry on. And but considering our personality, and I think many more people are listeners, I feel there are people who get affected by other people's stories. भाई मैं तो मूवी देखते देखते कोई रोता हुआ दिख गया, मुझे रोना आ जाता है. अरे वो एम्पैथी फैक्टर होता है ना कि अरे इसको जो फील हो रहा है वो मुझे हो रहा है. We actually put ourselves in those shoes. So I think these are the kind of people we should actually put guards on. हाँ, correct. और मैंने ऐसे भी सुना है कि कोई तुझे अपना फॉर एग्जाम्पल सैड स्टोरी सुना रहा है जिसकी वजह से यू ऑल्सो फील सैड बिकॉज यू आर एम्पैथेटिक. बट बाद में ऐसा फील होता है कि अरे बट दिस इमोशन इज नॉट माइन बिकॉज ये इसने मुझे शेयर किया है, दैट इज अफेक्टिंग माई इमोशंस एंड मुझे उसकी वजह से वो सैड फील हो रहा है. Correct. This is, you know, there is this term cross manifestation. Oh.
लाइक हम एक मैनिफेस्टेशन तो करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा, ये अच्छा, दे दो, हाँ, हाँ वी आर हो जाए, ऑल हो जाए। पॉजिटिव माइंडसेट एंड एवरीथिंग, बट देयर इज दिस क्रॉस मैनिफेस्टेशन आल्सो. इट्स नॉट लाइक दैट गॉड इज फिल्टरिंग योर टॉक्स कि हाँ इसने अभी ये वाली चीज में मांगा है तो मैं इसको यही दे देता दूंगा, हूँ. हाँ. Whatever comes out from your mouth, whatever things you're thinking, it is a cross manifestation. You're indirectly manifesting it in your conscious mind, unconscious mind. मतलब ये ना हो या प्लीज ऐसा ना हो जाए, ये भी वो सोचना भी गलत बोलना है, हाँ. and then like किसी और का तुम सुन रहे हो and then constantly you're thinking about it. Limitedly thinking, helping is a different thing, but like वही उसने तेरा- तो 10 मिनट बोल के चला गया and हाँ. for तेरे you it दिमाग में is 10 for 24 hours चल रहा है वो. हाँ, हाँ. So that is again cross manifestation and it then it starts reflecting on your own life. क्योंकि उसमें हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. हाँ. कि हम किसी और चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं. Correct. और अटेंशन स्पैन इतना फिर ये हो जाता है कि अरे वापस वही चीज पे सोच रही हूँ मैं, निकलने का ट्राई कर And रहे you know, हैं फिर भी. physically tiring and mentally tiring is totally different. ओ It- वो सो के नहीं होता कि- सो के भी नहीं सो होता के भाई. नहीं होता है. Like if someone is in the dreamland like me, जिसको हर थोड़ी देर में सपना भी आ जाता है सोते ही इंस्टेंट सपना आ रहा है, then it is very difficult because I have witnessed it. अगर मैंने आज रात को किसी का कुछ सुन लिया ऐसा, I start seeing that exact thing in my dream. तो ड्रीम्स में भी मेंटली रेस्ट It is तो not मिल ही नहीं रहा. resting. ऐसे ही dreams देखना is considered कि it is not a resting time. You are Brain making is your working. mind work, and that is even more sad because if I know it in my dreams also कि Oh, shit. like मुझे पता है ये reality है and I'm seeing it because it is in my head. हेड. So that is indirectly affecting one own self. क्योंकि कुछ लोग थोड़ा अपने ओवर थिंकिंग से या प्रॉब्लम से ओह. ऐसे ब्रेक लेने के लिए भी सोते हैं. ऐसे चीजों में अगर सपने में भी आ जाए, It's not ending. पूरा दिन वही चीज को लेके my God, like it is a loop. You have to break the loop. हाँ, सच्ची में नहीं तो फिर क्या वही Honestly. चालू रहेगा पूरा टाइम. I तो have witnessed it. Like energy sucking thing is very real. अभी like we are talking about college. I think I have spent entire semester consoling people just because I'm a good listener. हाँ होता So है वो. you know people take it in a different light when you show yourself as one thing and they try to exploit you. क्योंकि ऐसे होता है ना कि उनको लगता है कि अरे ये तो है ही. है ही और मुझे कुछ बोलना है. एंड वो फिर मुझे लगता है वन साइडेड फ्रेंडशिप्स भी ऐसे ही होते हैं. हाँ. कि जस्ट बिकॉज दे वांट टू वेंट आउट, कोई तो चाहिए सुनने के लिए. दे विल कम अप्रोच यू. You obviously know that giver and receiver kind of thing in every bond. हाँ. So I think I become the receiver where I become the listener. तो लोगों को फिर अगेन वही हो जाता है ना घूम फिर के. इट इज द सेम थिंग लाइक व्हेन यू लिसन एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग, यू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्सन्स लाइफ दैट मच. करेक्ट. You obviously you make good friends by that. You make a lot of friends in fact because you know almost everybody. You're giving that much time to everyone. But I witnessed it that more time I'm giving to other people, I'm giving more less time to myself. करेक्ट. I'm cutting my time, me time cut हो जा रहा है. हाँ. I witnessed it very clearly. Like I did not care about मेरा lifestyle, कितने बजे सो रही हो, कितने बजे उठ रही हो, क्या खा रही हो. I was busy talking to people तो lunch skip कर दिया. I was busy listening to people on call तो call skip कर दिया. Late night sleep skip कर दिया. It is a thing. मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये चीजें ये लोग आते हैं, बात करते हैं, निकल जाते हैं, बट व्हेन इट्स आवर टर्न तभी Reciprocation is not there. किधर है? You know, it is very easy to say कि नहीं expectations नहीं रखना चाहिए. It's not easy. Obviously, you want, if you give something, you want something back. It's not two-way selfish. road. हाँ, of course. क्योंकि देख ना फ्रेंडशिप्स में क्या होता है, अगर एक ही पर्सन डालते जा रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस पे उसका Empty bucket हो जाएगा empty हो ना, जाएगा, घड़ा खाली हो जाएगा. Expected. तो and- फिर कैसे लोग समझ में नहीं आता उनको. फिर जब हम कन्फ्रंट करते हैं कि चलो दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, Like I want more. हाँ, तो फिर वो गलत एंगल में चला जाता है कि अरे And then ये बहुत people take it डिमांडिंग in a है very ऐसा. different light. Yes, there are people who will consider your feelings. Like I think there was this one time, I think we went out for someone's birthday and then you got exhausted that day because you wanted to be somewhere and in the college.
So we had this conversation, which I think तेरे को याद नहीं होगा, मेरे को याद है. हाँ मुझे. It was birthday this time only 2 years back. So Okay. you were wanting to be in college, but we wanted all of us to be together, the group. So I took you out, like सब चल करके I took you out, and then it drained you. But there was communication. You told me very clearly that you had a different thing in mind, and then वो it got. practical वाला क्या? हाँ. हाँ. But that, see, if this conversation, I think मेरा किसी और के साथ हो रहा होता तो कोई तो एक hurt हो जाता, and like ego hurt हो बोल सकते हैं, या कुछ भी hurt हो सकता है वो. नहीं पहले तो स्पीक अप नहीं करते. There's no communication. कम्युनिकेट करने के बाद भी अगर राइट वे में नहीं किया तो वो सामने वाला कैसे परसीव कर रहा है उस पे इशू हो जाता. और कुछ बोला ही नहीं तो फिर वो मुझे drift बोला apart क्यों होता है. नहीं, ऐसा हाँ, वाला चीज होता आ है, जाता होता है है. at the end. वो कब होता है जब ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं एंड सामने वाले को पता चल रहा है ये तो अभी इतना मिल नहीं रहा है. हाँ. तो फिर जब वो तब कन्फ्रंट करते तब पता चलता. अगर ये तो फिर बोलते कि अरे बोला क्यों नहीं, पहले बोलते तो वी कुड हैव सॉर्टेड इट आउट. And there are, you never know a person very like 100% कि हाँ मुझे पता है मैं इसको बोलूंगी तो ये ऐसा ही करेगा. हाँ हाँ नहीं नहीं. So there is something that keeps you back also, but there is a major difference between gut feeling and practically what you should do. Sometimes we keep ourselves ऐसा कि नहीं यार छोड़ जाने दे, बोलते नहीं है, छोड़ करते नहीं है. But actually you must do that because it is affecting. हाँ. क्यों नहीं बोला. I think we have so many stories from the मतलब मैं तो अभी तो we are quite old. मतलब like we are ओल्ड मतलब ठीक है थोड़ा अक्कल आ गया है. हाँ, like we have aged in a good way, but when I think teenager age में या even younger than that वो like ये चलता ही रहता है डिलेमा अंदर ही कि like बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो पीयर प्रेशर होता है ना तभी कि अरे सभी कर रहे हैं. देखा देखी रियल इन दैट एज होता है. और ऐसे कि अरे ये लोग हैंग आउट कर रहे हैं, ये तो कूल काइंड ऑफ ग्रुप है तो इनमें मेरे को मर्ज इन होने के लिए आई हैव टू डू दिस. हाँ तो अभी जब मैं देखती हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं था, नीडेड नहीं था, एंड व्हाई शुड आई डू दीज थिंग्स टू इम्प्रेस दीज काइंड ऑफ पीपल, एंड स्पेशली दोस पीपल आर नॉट इवन देयर इन लाइफ currently. The people I feel I was trying to impress, they're nowhere in my life currently. I don't even know what they're up to right now. I don't see them on social media anywhere. But that point of time वो इतना affect करता था. I'll tell you why. बहुत बेसिक चीज है, लाइक वो उसने बाल काटे, मेरे बाल चोटी में. Does she look better? Does it affect my impression? Sitting on the first bench, sitting on the last bench, everything affects. क्यों पता है हमारे स्कूल टाइम्स में आई थिंक टिल 10th 10 साल हमारा वर्ल्ड उतना ही था. वो था या फिर ट्यूशन का ग्रुप था वो, बट वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा. हम 8 घंटा एक ही जगह जा रहे, सेम लोगों से मिल रहे, तो हमारा वर्ल्ड वही हो गया था. एंड ऐसा लगता था कि अरे जो करना है इनमें ही करना है. चलिए पॉपुलर ग्रुप है तो मुझे एक्सपोजर मिलेगा किधर स्कूल में भाई, उसके साथ दिख गई मैं तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा. होता है. फिर बाद में ऐसा होता है कि अरे ये लड़कों से बहुत बात कर रहा है, मैं भी करनी चाहिए क्या. Should I be more friendly to guys? फिर फर्स्ट बेंच लास्ट बेंच का भी सिनेरियो होता है कि ये लास्ट बेंच पे मस्ती कर रहे हैं. वो स्टडीज का कुछ नहीं भाई, वो गया सीधा बैक सीट पे गया, स्टडीज बैठ लास्ट बेंच पे बैठना इंपॉर्टेंट है. फिर लोग टिफिन खाते हैं, ये करते हैं, चिट पास करते हैं. डू वी लाइक मेरे को पीयर प्रेशर बहुत बड़ा चीज है. आई थिंक वी डोंट टेक इट सीरियसली बट इट इज अ बिग थिंग. वो मेरा तो बहुत चीजें याद है. मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी तो आई यूज्ड टू थिंक कि वो लास्ट बेंच वाले आर हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ, तो should I join them? Should I be a little more loose in personality? Friends का context पता होगा ना, like the Phoebe, Monica and Rachel had this conversation that Monica is very uptight and Rachel is very loose, let loose. But वो जब तक कोई मुंह पे नहीं बोलता है ना तो पता नहीं चलता. सेल्फ रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होता है, and it takes a lot of time. वो पॉइंट आउट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. अब जैसे हमने बात किया कि एक टाइम पे बोल नहीं पाए तो चुप बैठ गए तो बाद में चुभता है. एक टाइम पे
इतना बोल दिया कि इतना जरूरत कि तो जरूरी नहीं था और अच्छे से कन्वे भी नहीं कर पाए ना। Correct. क्योंकि हमारा फीलिंग कभी कभी आउट ऑफ सैडनेस, एंगर, जेलसी, ईगो, ये सब मिला के जो आता था we were kids let then. it out. तो kids के एज में any emotion can get heightened. It's not just PMSing or stuff which is right now, but in general also I've realized कि कुछ चीजें evolve होती है. That is the very tender age, where Correct. emotion भी नया emotion feel होता है. I think we just knew happy, sad, crying, laughing. ऐसा गिन सकते हैं 5. और आज के डेट में I think kids know much more emotions than us. Anxiety, anxious, God. depressions, melancholy. फिर वो इतना सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो बोल नहीं पाते, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं, इंफीरियोरिटी, Totally. Superiority and inferiority. Oh God. I think आई थिंक स्कूल में हमारे गैंग में या हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसकी वजह से बहुत अफेक्ट करता है हमारा जो भी It is not पर्सनालिटी। something that parents need to teach. It is not something that comes in books. It is something that evolves with age. किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत कम एज में कोई बहुत ज्यादा ही सॉर्टेड होता है. Kudos to those people. Oh God. But कुछ लोग हैं like me like experience से ही सीखते हैं. I have a lot of experiences in friendships. I think my luck in friendships has been very different. अभी तो I'm touchwood in a good space where I feel that only selected and गिन के अगर मेरे पास 2 है तो it's a good phase. अभी समझता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी टोटली. तभी तो एकदम ऐसा था कि नहीं बहुत दोस्त चाहिए मेरे को, ऐसा बर्थडे पे 20 people minimum from my friends. तेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी बोला, जितने ज्यादा लोग होंगे ना. अरे I'll tell you one story. मैं शायद 7th में थी 8th में थी पता नहीं, तब भी ऐसा फुल ये था कि नहीं ज्यादा लोग चाहिए बर्थडेज पे. हाँ ठीक है बहुत लोगों को बुलाना है तो ना अपने इधर हाई स्ट्रीट का वो मॉल है देख उधर मैगडी है. हाँ. ठीक है तो मैं मम्मी के साथ एक बार गई थी उधर. मैंने मम्मी को बोला मेरे को बर्थडे पार्टी इधर देना है. उधर कैसा था, एक रूम था मैगडी के अंदर ही, उधर तुम बर्थडे दे सकते हो पार्टी अंदर. I know that place, yes. तो मैंने मम्मी को बोला था नहीं मेरे को इधर देना है बर्थडे पार्टी, मैं बुलाऊंगी. और जब मैं लिस्ट लिखने बैठी कि चलो, क्योंकि वो अभी मम्मी लोग कैसे सोचते हैं कि चलो पर पर्सन इतना कॉस्ट आएगा, ये वो क्वांटिटी एंड नंबर्स, दैट्स ऑल. तो अगर ज्यादा लोग आ रहे तो दिस इज बेनिफिशियल. कम लोग आ रहे थे तुम बाहर ही दे दो पार्टी, जिसको जो चाहिए ऑर्डर करके खा लेगा. थोड़ा प्रैक्टिकलिटी. फिर मैं मम्मी को बोली नहीं बहुत लोग आएंगे बहुत लोग आएंगे. और मैं लिखने बैठी थी चलो लिस्ट कि चलो ये आएगी ये आएगी ये आएगी. 5-6 लोगों के बाद मैं बोली अब और किसको लिखूं मैं ये तो बहुत कम लोग हैं. पर मेरे को तो चाहिए था इन योर हेड. तेरा तो हो गया था कि हाँ मेरे को चाहिए एकदम जायंट साइज पार्टी, ऐसा म्यूजिक बजे, थोड़ा लोगों को याद रहे भाई अस्मिता के पार्टी में गए थे. एक कॉर्नर में सिर्फ खा रहे, एक कॉर्नर में नाच रहे. ऐसा मैं बोली 5 लोग और 3 लोग इधर 2 लोग उधर, क्या ही पार्टी. पर फिर मैं बोली कि नहीं मेरे को चाहिए ये. तो मैंने बुलाया चल 5 लोग 7 लोगों को बुलाया रहेगा. मैंने आए उसमें से 4-5 उतरे परमिशन वाला. हाँ स्कूल में तो वैसे सीन था. तब मेरे को समझा कि ये तो मेरे को तब गिल्ट आया कि साला मम्मी का इतना पैसा वेस्ट कर दिया मैंने कि क्यों जरूरत नहीं था. इन अ वेरी गुड एज. मुझे गिल्ट्स तो बहुत बाद में आए. मुझे तो मेरे लाइक सेल्फ गिल्ट्स बहुत बाद में आए कि लाइक बोलते हैं ना लोगों के कपड़े देख के व्हेन यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स, व्हेन यू स्टार्ट वो इन्फ्लुएंसिंग तभी था. ये तो क्या है सी लाइक वो देख एक टॉपिक तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिग थिंग दैट एवरीवन लाइक्स टू नो लाइक व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, व्हिच इज बॉडी इमेज, रेसिज्म एंड काइंड ऑफ थिंग. ओह गॉड. आई थिंक मोर देन बाहर के लिए वो खुद से खुद का फाइट ज्यादा है. करेक्ट. I never had this complexity कि नहीं these people are fair, these people are dark, they have good features. उसने braces पहने हैं, उसने चोटी कैसे की है, या ऑयलिंग की है, वो तेल लगा के आ रही है. I was तेल लगा के आ रही है वाला proper बच्चा. I was very obedient and very nice kid. I wasn't into like वही मैं बोल रही हूँ ना feeling of left out वाला चीज वो एज में होता था. I used to be one way, but I used to think कि are they having more fun? Am I really like
that nerd kind of thing. स्कूल में फिर फ्लिक्स करके आते थे तो फिर Oh इधर पेन my. लगाते थे जितने ज्यादा क्लिप्स उतने ज्यादा Oh my god, oh you knew this shit. जितना क्लिप्स लगा रही मींस दैट गर्ल इज मोर हॉट. Oh. माय गॉड. भाई क्या सोचते थे यार अपन बचपन में. अभी उन लोगों को देखा जाए तो वो you know there are many videos that I see now like I wish I knew this in my 20s Oh, yes. while I'm in my 30s kind of thing. हाँ हाँ. I think वो ऐसा और कम होते जा रहा हाँ, है. In my 20s while I'm like while I was in my teenage वही जैसा ऐसा वाला चीज early बहुत हो रहा है. It's like there's no end to it. And perception is not just it's again you know I'm not saying कि वो पेरेंट्स का गलती है नहीं. या स्कूल का गलती है या बुक्स में नहीं दिया है, सीबीएसई ने नहीं डाला है, आईसीएसई ने नहीं डाला है, एथिक्स नहीं सिखा रहे आपको. इट्स you versus you actually. वही तो like what you think about yourself is what इट रियली It is. मैटर्स एंड वो ही चलेगा आगे. क्योंकि हम ऐसा देखते हैं ना अभी जो टीनेज है दे आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंस्टाग्राम totally या सोशल लाइफ या तो उनको बात कैसे करे या मैं कैसे बताऊँ. अभी जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत अडेप्ट करते हैं ये टाइम पे. it is catchy. हाँ You know this the series that we watch you know age restriction का ना मेरे को पर्पस समझ में आ गया with the period of time. Like I used to पहले सोचती थी कि 13 plus 18 plus why do they put it like that? Because your mind is not equipped for adapting to those things. Honestly. करेक्ट. I'm like वो मजा तो आता है कि हाँ मैं 13 की हूँ, मैंने adult stuff देख लिया. बट वो पर्सपेक्टिव नहीं आता. You don't know what is it about. करेक्ट. Like certain things are in our mind कि इसको ऐसे ही देखना है. You are not open to new objective, new perspective. You cannot adapt it in a different way. You know there are Western culture and like you were saying Western series जो है हम देखते हैं उसको. Right now at this age we know कि it is not Indian culture or it is not how we are supposed to be in our society. करेक्ट. क्योंकि It's not just restrictions. It is just your own thinking also कि मुझे ऐसा नहीं है. रहना है. करेक्ट. But if I'd seen certain things like you know 10 years back where my mind and perspective वो घोड़े को होता है ना ऐसा नाल वाला चीज. हाँ ऐसा fixed mindset and fixed outlook में मैं अगर देखती तो मेरा outlook चीजों को लेके बहुत अलग होता. I think and have seen it in me and other friends of mine जो already बहुत चीजें before age कर चुके हैं. वो क्या होता है ना फिर इतना जल्दी हमें इन सब चीज़ों से हम इन टच आ जाते हैं. उसका राइट यूज़ फॉर एग्जांपल फ़ोन जल्दी मिल गया उसका राइट यूज़. करेक्ट. ठीक है. फिर बाद में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एज रिस्ट्रिक्टिव है 21 या 25 वाली. जैसे वोटिंग भी हमें 18 के बाद करने क्यों बोलते हैं बिकॉज हमें थोड़ा क्लैरिटी आया है. You should know at least if you're not doing right then don't do wrong. हाँ. Be neutral. वोटिंग का तो मेनली आई फील दैट इज मेजरली इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर तुमको सही भी नहीं पता देयर इज नो राइट एक्चुअली बट अगर तुम सही भी नहीं जानते तो गलत को भी मत जीतो ऐसा. हाँ करेक्ट. दैट इज द आउटलुक. इसलिए एज रेस्ट्रिक्शंस देते हैं. और जल्दी एक्सपोज होने के बाद ना ऐसे सब चीज़ों से हम मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ देख नहीं पाते बिकॉज वी आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज थिंग्स. अभी जैसे हमें बचपन में ही फॉर एग्जांपल फ़ोन दे दिया. ठीक है. तो हमें वो इम्पोर्टेंस पता नहीं है कि इंटरनेट का क्या यूज़ करके हम either we can build a skill or destroy our life Existing things that I can actually be good at. हाँ Correct. तो क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि कुछ लोग एंट्रेंस से ऐसा कुछ करते हैं जब भी प्रिपरेशंस फोन्स नहीं रखते वो अपने पास. इंटरनेट यूज करना है तो भी ऐसा दूसरा फोन रहेगा या लैपटॉप रहेगा. जो उनके पास फोन है वो नहीं यूज करते. वाई बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने होते हैं. या हमें अभी देखना अपन फोन पे कुछ सर्च करेंगे 10 चीजें दिख जाएंगी फिर करना कुछ है वो होता नहीं कुछ और ही चले जाता है. फिर तो ईयरफोन्स बाय करने आए पर हम देख रहे हैं कि अरे इसने ये सीरीज में ये टॉप कौन सा पहन लिया या ऐसा कुछ. तो जो चाहिए वो नहीं मिलता. पिक्चरिंग योरसेल्फ इन सर्टेन वे. हाँ वो होता है. और फिर मुझे लगता है कि हम अपने एम से भटक जाते हैं बुरी तरह. और वो एम कभी कभी बिल्ड भी नहीं हो पाता कुछ लोगों के लाइफ में. I got my first phone I think
मेरे पास जो स्कूल के टाइम पे भी देते थे वो कोर्सेज के लिए जा रहे तो घर पे तभी बुलाने कुछ, के लिए हाँ, कि हाँ। क्या है, बाकी टाइम Inform करने आई के डिड लिए। नॉट, आई थिंक आई डिड नॉट हैव एनी इंस्टाग्राम, एनीथिंग, नो व्हाट्सएप, नथिंग। तभी तो नहीं था ना। इंस्टाग्राम School तो के फिर भी देयर वाज अ थिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाज अ थिंग एट माय Facebook टाइम। था big time। स्नैपचैट तो इवेंचुअली बाद में आया इट वो। इज जस्ट फॉर फोटोज आई थिंक, बट बट लाइक या इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग, मेरे को वो टाइम पे दिखता था कि लाइक एवरीवन इज देयर, एवरीबॉडी इज पोस्टिंग, एवरीबॉडी इज कनेक्टिंग, एंड दे आर लाइक, एंड दे वर लाइक दैट कि हाँ तू नहीं है ना। ओ गॉड, आई टेल यू समथिंग। क्या हुआ था स्कूल में थी मैं, तो नया नया इंस्टाग्राम चल रहा था कि फीड अच्छा दिखना चाहिए, फीड Aesthetic। हाँ, तो ना डोप। तो मेरी एक दोस्त थी, वो थी इंस्टाग्राम पे और मैं नहीं थी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस ऑल फस अबाउट। तो मेरे को बोलती है नहीं नहीं तू मत आ इंस्टाग्राम पे, तू चलेगा ऐसा, मतलब She wanted the limelight and you shouldn't be there. what I felt is कि उसको चाहिए था कि I'm not cool enough to be on Instagram। नहीं नहीं तेरे लिए नहीं है। You ऐसा। felt that, but now what I feel out of it is she got insecure that her limelight will be, Stolen। हाँ मतलब divert हो जाएगा। मैं बचपन में भी नहीं सोचती थी यार ऐसा सब। वो नहीं होता है, तभी नहीं समझता है। आई विल टेल यू, मेरा 8th स्टैंडर्ड का स्टोरी है। आई सेड दिस गर्ल कि दिस ग्रुप ऑफ गाइज आर दे आर गुड, लाइक not just by the looks or stuff like that, but they are good people. उनके साथ बैठ के अच्छा लगता है। You don't have to be like date करना है, crush चाहिए, ऐसा नहीं। You have to be a good friend. Yeah. I told her कि I like these people as friends. She went there and she told them that this girl is having a crush on you. And then those guys वो हो जाता है ना, वो बिल्ड अप वॉल आ गया कि गार्ड अप हो गया। हाँ, उसका माइंडसेट अभी ऐसा है तो इससे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एज में किसी को भी एक कमिटमेंट एंड ये सब का कुछ पता ही नहीं है। You know, it breaks bonds. I think jealousy is a big thing. You know, when we talk about jealousy, उसमें ना वो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तुझसे जलती हूँ, ऐसा वाला नहीं होता है। You know, there is this pseudo jealousy, silent jealousy. What is your like go-to option when you see jealousy like that? Like, I know it is a negative feeling, but when it comes to healthy competition, I think you should encourage it. But कभी-कभी ऐसा होता है कि for no reason कोई जो है जिससे तुम्हें वो वाइब आती है कि नहीं ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसका इंटेंशन या ये जल रहा है, तो मुझे लगता है कि वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि हमें वो थिंग्स अवे, मतलब वही कुछ जिस चीज से यू विल ऑब्वियसली नो कि आगे वाले को ये चीज से थोड़ा ट्रिगर हो रहा है, हाँ, तो आइदर वो टॉपिक तुम अवॉइड करो, नहीं दिखाओ, नहीं तो फिर थोड़ा दूर ही ओवरऑली कीपिंग इट अवे। तेरा कैसा टेक है? I feel there is nothing like कि कोई भी jealous नहीं होता है। हाँ. Somewhere there is healthy jealousy and there is unhealthy jealousy, and unhealthy jealousy can कुछ भी level पे हो जाता है, वो ट्रिगर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उससे। They can cause damage to you. Then there are people and there are the jealousy जो damaging नहीं है, but it's not healthy either. You won't feel happy sharing about those things to that particular person or things like that. हाँ, वो एक gut feeling भी आ जाता है फिर कि conflicting gut feeling है, like you will know कि शायद ये इंसान सही नहीं है, and then you will try to fight it yourself thinking कि मैं शायद overthink कर रही हूँ। इंसान इसी चीज का बोलते हैं ना लाचार है, slave है वो, slave of this overthinking. But at the end of the day, if you have to learn from your experiences over the period of time, you will understand कि नहीं ये इंसान के साथ मैंने ये experience किया, कुछ लोगों का दिख जाता है, कुछ लोगों का नहीं दिखता है। I just feel that sometimes distancing obviously is the go-to and best option if you feel something like that, कि थोड़ा distance कर लो, क्योंकि खुद के लिए important है यार, because you don't want to even lose that person. You are a social, we are human beings, we are social animals, we are about to have the social
belongingness. We want people, हमको चाहिए gossip, हमको चाहिए हम लोगों के बीच में 4 लोग बैठ मिलके बात करें, झगड़ा हो, spice चाहिए life में, tea चाहिए. But वही है, at the end of the day you cannot just cut off everybody. सभी खराब है ऐसा भी नहीं बोल सकते. Correct. Something might be there in you which you also know कि हाँ मेरे में ये problems है, मेरे में पता है मुझे ये problems है. That doesn't mean कि हर एक चीज से cut off करें. You just have to set boundaries with different people, I think. और फिर तुम्हारा instinct feelings से भी I think तुम्हें जाना चाहिए. It will get polished over the period of time. कि तुम जितना time spend करोगे वैसे तुम्हें उनके habits, likes, dislikes या वही triggering points ये सब पता चल जाते तो तुम वैसे adapt कर लोगे. You get to know that person. वही friendship, any kind of bond takes time. ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह वाला जैसा होता है ना, वो एकदम से फट से सब समझ जाए, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट दैट इजी एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर, दैट इज वेयर वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है. करेक्ट. और जस्ट इन केस कुछ टाइम में ऐसा होता है कि कुछ जगह पे नहीं भी होता रिजॉल्व, तो या फिर हम ट्राई करते हैं टू रिजॉल्व बिकॉज एट द एंड वी डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन. वी वांट इट. या बट अगर नहीं होता रिजॉल्व तो आई थिंक मूविंग ऑन इज आल्सो a good and decision. great option. Because friendship heartbreaks are real. Now we are entering the topic. Friendship heartbreaks. I think I've had many heartbreaks in friendship since childhood. Okay. In a different way. मतलब वो होता है ना, you don't realize people that they see the silent jealousy is not always कि हाँ मैं तुझसे जल रहा हूँ, जल रही हूँ, ऐसा वाला. It comes in any form. And you may never know because sometimes when you're naive and in that age you don't realize कि वो age में ये सब भी होता है. Some people mature in a very early age. Some people realize it very later. For me it happened very later. I think मेरी मम्मी को तो वो बहुत चीजें समझ जाती थी कि देख मेरे को लग रहा है कि ये सही नहीं है. बट हम तो चैलेंज करेंगे, हम रिबेलियस है, तो वो हार्ट ब्रेक फिर मिलता है. एंड फिर वो ऐसा मिलता है कि it's not just you can't just move on. It takes a lot of time. वो बोलते हैं ना एक पार्ट चला जाता है उसके साथ. करेक्ट. क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा 1-2 बार कि आई हैड टू लूज अ वेरी गुड फ्रेंड. कभी ऐसा हुआ है कि वी आर जस्ट नॉट गुड टुगेदर एंड कभी ऐसा हुआ है कि दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट मोमेंट पे कट ऑफ करना इज अ गुड डिसीजन क्योंकि फिर वो तुम्हें तो उसके इट डजंट गेट टॉक्सिक. हाँ हेट नहीं आ जाती है. हाँ हेट भी नहीं है और फिर उसके रिजल्ट्स तुम्हें तुम्हारे लाइफ में दिखने से पहले, कॉन्सिक्वेंसेस दिखने से पहले, इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू कट ऑफ, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. क्योंकि ऐसे ही हम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे थे तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके लाइफ में आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड. मतलब उसके थे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जहाँ पे इट वाज अफेक्टिंग हर लाइफ एज वेल एंड मेरा भी ओनली बिकॉज आई वाज द ओनली गुड फ्रेंड शी कुड एवर मेंटेन. ओह गॉड. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वही एंजाइटी एंड ये सब उनके साथ हमें भी पास ऑन हो जाता है, फिर वो हमारे अदर फ्रेंडशिप्स में भी इफेक्ट होता है. We become busy fixing their life. करेक्ट. वो भी होता है एंड फिर ऐसा हुआ कि आई हैड ट्रबल ट्रस्टिंग पीपल. तो मैं तेरे साथ भी फ्रेंडशिप हुआ तो आई वाज अ बिट लाइक कि वो दैट इज व्हाट द हार्ट ब्रेक डज बिकॉज एक चीज को लेके तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ गया कि मैंने लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ ये चीज की वजह से, विद द नेक्स्ट पर्सन यू विल ऑलवेज बी टेरिफाइड कि मैंने लास्ट टाइम तो ये हुआ था, इस बार भी करूंगी तो हो जाएगा. तो यू विल ऑलवेज हैव दिस बाउंड्रीज विल कीप ग्रोइंग larger and larger. More heartbreaks happen and more boundaries raise up. तो वही, but I don't think कि that should be a difficulty making more friends because फिर friends are obstruct नहीं कर सकते. हाँ वो एक important part है life के. You should have friends. तो भले if you have bad experiences you should never let do. Of course you can learn from them, but मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सीख के यू शुड बी बेटर एट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम डर रहे हो फिर सेम लूप में भी नहीं जाना है एंड यू आर कॉशियस आल्सो.
I think I also had, since we are talking about college and more, तो मेरे पास भी like I have had experiences and I have had serious heartbreak with that friendship. Like I took 1.5-2 years to move on from it. And ऐसा नहीं है कि वो ऐसा वो तन्हाई वो देवदास वाला नहीं, वो heartbreak नहीं, होता है वैसे वो. नहीं, फ्रेंडशिप हार्टब्रेक इज डिफरेंट. It is a different heartbreak. Like you want to work on it, you want to fix it, but you cannot stay in it either. करेक्ट. Because you're all like always terrified कि हाँ last time इतने से चीज से इतना बड़ा चीज हो गया था. and then it got bitter. Sometimes friendship do fix. अगर नहीं होता है fix तो we have to learn to move on. दैट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. मुझे ऐसा लगता है नहीं हुआ राइट टाइम पे तो It gets bad to worse. वही bad ही है वैसे ही heartbreak and it just gets worse with that because you start hating each other then. फिर उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता. फिर जो भी अच्छे मेमोरीज है वो भी सब वही सब चला जा रहा है, सब चला जा रहा है एक साथ. Like you had experience कि it was a sulking phase for you. For me it was like I learned my lesson there कि sometimes overdoing does damage. ना कम करो ना ज़्यादा. Just the adequate amount you should learn how much to do. I used to overdo. मेरा overdoing बहुत जगह पे मेरे को काम आया because somewhere if someone is lacking in the friendship, I am overdoing so it is getting suppressed and balanced there. That kind of is a good healthy friendship. But where someone doesn't need it and they are bad at communicating and they cannot tell you कि नहीं मेरे को लग रहा है कि थोड़ा रुक जाते हैं, हाँ ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहा ये. If you can communicate it will still work. But अगर communication भी नहीं है and then it is getting like sort of choking if you can say. फिर वो एक एंड से अगर कोई खींचेगा तो फिर डोरी टूट ही जाएगी. Especially जब वो एंड को पता भी नहीं हो रहा है कि क्या bothering है. What can be worked on in the friendship if you want to hold on. But ठीक है. I think I learned my lesson there कि sometimes overdoing can damage. Don't push it too much. Sometimes होता है वो. It's not that I hate you, but sometimes I cannot like you. हाँ. I think sometimes I learned this. I need my space. Yeah, I learned it very late. कि I might love some person a lot. It's not needed that I hate it, but sometimes I can dislike that person. It is completely it is normal. Yeah, it is normal. That should be normalized. कि sometimes you can dislike some person. And that is not permanent. That is just a temporary just phase. a phase. Even it could be just for few hours. Like you could feel कि नहीं यार ये चिड़चिड़ हो रहा है, बार बार बात नहीं करना है, तो थोड़ा देर बात नहीं किया, थोड़ा देर डिस्टेंस रखा तो it can again save a lot of friendships and bonds. Correct. तो ये एक चीज तो I have realized कि थोड़ा बाउंड्रीज सेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए. I think ये सब टाइप के बॉन्ड्स में ये चीज है. नहीं अगर सही से कम्युनिकेट किया फिर हम भी गलत पर्सन पोर्ट्रे हो सकते हैं. क्योंकि फिर उसको गलत मैसेज चला जाएगा. हाँ. तो आई थिंक इट बेटर कि फेस टू फेस बात करके खत्म करो. क्या होगा ज्यादा ज्यादा बुरा लगेगा ना, बट रह तो जाएगा चीज. What they say now is gaslighting. Oh yes. Like they just pretend कि नहीं मैंने बोला था तुझे यार. हाँ तुझे याद नहीं है. मैंने तुझे पहले ही बोला था मुझे नहीं पसंद है. It doesn't work like that. And speaking on the right time is again I think very important. हाँ. कि तब भी तुरंत मतलब ऑफ कोर्स नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल. लोहा गरम है तो तभी मारो. हाँ. वो चीज जरूरी है बिकॉज आज हुआ है 6 महीने बाद 1 साल बाद तुम आके वो चीज अगर if it is bothering it is good you are talking but if you have never spoken about it और 1 साल बाद बात कर रहे हो आप आगे वाला भी कहाँ सुनेगा. हाँ. और वो भी है कि ऑफ कोर्स जिससे बॉदरिंग है उससे जाके तुम प्राइवेटली बात करो. ऐसे नहीं कि 4 लोगों के सामने वापस फिर तुम्हारे वो फ्रेंडशिप या रिलेशन का ही वो एक डिपिक्शन बनता है. Disrespectful first of all. Respect is a very big thing. You should have it like वो बोलते हैं ना jokes and disrespect के बीच में एक बहुत पतला लाइन है. Yeah. You should maintain it because some people like it कि हाँ हम 10 लोग बहुत close friends हैं तो हम सब एक दूसरे के बारे में सामने बात करते हैं. But some people might find it offensive. And then they can't communicate it because again they are peer pressurized. Correct. कि नहीं लोग क्या सोचेंगे if I say कि it is और मजाक ना बन जाए मेरा. हाँ. Everything leads to something.
तो you get offended, you cannot say about it. And then again वो communication gap हो जाता है फिर. And then somewhere it is bitter. You move on from it, but you remember it somewhere in your हाँ, वो consciousness. होता है यार बैक एंड में कि अरे ये इसने मेरे को मुझे ऐसा तब बोला बोल था। देना चाहिए था, मुझे तब कर देना हाँ। चाहिए था. It's not just कि चाइल्डहुड में या बचपन में हम ये सब करते हैं. अभी भी होता है ये चीजें. हाँ, We don't know the right time for everything. अभी भी हम सीख ही रहे, ऐसे नहीं कि हमें पता चल गया है लाइफ ऐसे चलती है, हम ऐसे भी We have not decoded the life हाँ, yet. क्योंकि इट्स अ लर्निंग फेज. हम हाँ. मुझे लगता है और भी ग्रो होंगे. वो वाले फेज में भी वी आर स्टिल लर्निंग ओनली. Correct. There is no end. My grandmother used to tell me this. She learned certain things about life at 50, at 60, at 70 also. Like before leaving also she used to always say ki you should be open to new things. Acceptance is the biggest thing to have. From moving on or to learning or to realizing or to amending. कुछ भी नया करने के लिए you have to first accept it. Denial phase वो जो आजकल चलता है जलूलू. You know, denial phase. Have you ever witnessed a denial phase in your life? कि हो रहा है but you're denying it. मैं एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं डिनाई नहीं कर रही थी. आई थिंक मैं खुद को ही बोल रही थी कि नो एवरीथिंग इज फाइन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज वाला फ्रेंडशिप कि नहीं ठीक है सब. बट मुझे वो गट इंस्टिंक्ट आता रहा कि नो इट्स नॉट फाइन, not right. मेरे से कुछ छुपाया जा रहा है या फिर जो भी है वो 100% फेस टू फेस सच नहीं है. तो मेरा क्योंकि मैं ऐसा थी कि जो है सामने वही सच है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज. Correct. एंड जब कोई तीसरा के तुम्हें बता रहा है कि सच्चाई तो कुछ और ही है, जस्ट बिकॉज यू आर विद समवन, तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव इज ओनली दैट मच. पर व्हेन कोई तीसरा पर्सन आके तुम्हें बोले कि जो तुम जानते हो वो सच नहीं है, एंड वो बहुत हर्टफुल है. एंड ऊपर से तुम्हारा जितना भी एफर्ट्स है या तुमने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग दी है सामने वाले को, सब वेस्ट गई ना. करेक्ट. एंड फिर वो फ्रेंडशिप का रिस्पेक्ट भी नहीं रहा, सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं रहा. तो फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेरा ही डिल्यूजन था कि आई वाज स्टिल हैड दिस होप कि ये कहीं ना कहीं तो फिक्स हो जाए. आई थिंक But then I had to accept it. माइंडसेट हाँ. सब में एक बार तो आता ही है. The friendship I was talking about, which I took 2 years to move on. In that 2 years, I might have tried myself कि ठीक है, let's work on it. क्या हो जाएगा? एक बार गलती सबसे होती है. Let's try करके. But and आगे वाला person was also very open to that. Like if it's you, I'm ready to work for it. हाँ. That is very good thing to say and कि एफर्ट्स ले रहे हैं चेंज करने के लिए, टू वर्क इट आउट. दोनों साइड में एफर्ट लेने का इच्छा है, बट व्हेन एवर वी यूज्ड टू ट्राई एंड लाइक कम बैक टू द सेम प्लेस एंड सेम पेज, इट वुडंट वर्क. बिकॉज आई थिंक कभी कुछ लोग ओवर कमिट कर देते कि नहीं तेरे को ये बुरा लग रहा है, आई विल चेंज दिस फॉर यू. बट जब करने की बात आती है तब सच्ची में समझ आता है कि वो नहीं होता. यू कैन प्रॉमिस बट यू कैन नॉट कीप द प्रॉमिस. हाँ. तो वो चीज आई थिंक मेरे टाइम पे आई रियलाइज कि we both tried a lot कि let's work on it, let's try to fix it, maybe we can change certain things, let's not over cross line. वो mindset में है, but the past keeps hitting up. वो repeat भी होता है कभी कभी. हाँ, it's not that it's completely changed या something. People do not change in certain phases. I remember my grandmother used to say कि लोग ओल्ड एज में भी नहीं बदल सकते हैं. ऑब्वियसली दे हैव बीन लिविंग लाइक दैट फॉर अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल. 50-60 साल एक ही लाइफ थिंकिंग को लेके चलोगे, यू कैन नॉट चेंज इट इतना आसानी से. एंड इट इज सेम फॉर द किड्स ऑल्सो. ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता. तो दैट वे इफ किसी का कुछ आदत बन जाता है ना, एंड इफ यू डिस्कवर इट लेटर इन फ्रेंडशिप, इट डज हर्ट यू. You might try to convey it to them कि गलत है, I think we should change it. हाँ. But अगर वो नहीं करना चाहते तो you can not force them. Correct. Neither you can force them nor you can force yourself to adjust and fit in. हाँ, like fitting in I think is a very big thing these days.
these days भी नहीं, आई थिंक वी हैव सीन हाँ स्कूल बचपन से टाइम से ही स्कूल देख से रहे हैं हाँ कि बन के रहना है, फिट होना है उस सर्कल में, इस जगह पे, इस लोगों के बीच में. एंड फिर तुम अगर कोई अलग दिखे तो उसका मजाक बनाया जाता है. Totally. कुछ लोग अलग बात करते हैं या फिर रहने का ढंग Judgments. अलग होता है, तो अचानक से निकल जाता है कमेंट. पता नहीं, वो तो मजाक में बोल के निकल गए भाई, पर जिसने सुना जिसका है और वो अगर रिलेट कर रहा है उस चीज को ना, तो वो रह जाती है दिमाग में. हो जाता है. अभी फिर वो कोप अप करने के लिए क्या पता कितना टाइम लग जाए. इट टेक्स फॉर एवर ऑनेस्टली. अगर मैं ऐसा कुछ पकड़ के बैठ जाऊँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ऐसा 5th 6th में किसी ने कुछ मुझे बोल दिया होगा, तो वो मुझे आज भी याद रहेगा. एंड अगर कोई और मुझे देखेगा ना वो करते हुए, मेरे को वही रियलाइज होगा कि लाइक मेरे को भी मेरे एज में, मेरे को वो टाइम में किसी ने कुछ बोला था. तो आई थिंक वो रह जाता है. वो रह जाता है ना. उससे रिकवर आई थिंक ओवर द इयर्स, जब तुम सीखते हो, वही एक्सेप्ट करते हो, तब भी तुम आगे बढ़ पाओगे. नहीं तो फिर एग्जैक्टली, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन द डिनायल कि नहीं सही था, आगे वाला सही था, आगे वाला सिचुएशन सही था, मैंने ओवरथिंक कर दिया. इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, देयर इज नो एंड टू इट. फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ब्लेम करोगे तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट होगा, बट इन व्हाट सेंस? अगर तुम सामने वाले की गलती हो के यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ, तो आई थिंक वो कोई गलत टेंजेंट में भी जा सकता है. स्पॉइलिंग योर ओन सेल्फ इन दैट. हाँ, एक चीज को बचाने के चक्कर में यू आर लूजिंग योर ओन सेल्फ. हाँ, आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ इट. वो ही हमें इतना बड़ा होके फील होता है कि जितना भी फिट इन वाला चीज था या फिर एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करना हो गया, वो तब भी इम्पोर्टेंट लगता था, बट अभी इट डजंट मैटर. क्यों? क्योंकि यू नो योर ट्रू सेल्फ. तुम्हें खुद अगर, और अभी ऐसा हो गया है कि कोई एक्सेप्ट करे तो सही है, नहीं तो नहीं. मैं हूँ वैसी हूँ. मैटर. हाँ, आई थिंक दैट इज द थिंग. वो अगर मुझे आज मौका मिले कि गो बैक टू अपराजिता एंड लाइक who is 15 years or 13 years old and go talk to her and give her some advice, these are the things I would definitely tell her, that it doesn't matter. It really doesn't matter. कोई एक दिन बाद भी लोगों को कुछ चीजें याद नहीं रहती हाँ, है. नहीं रहती है. एंड हम उस टाइम पे कितनी फालतू चीजों को लेके वी आर प्रेशराइज्ड फॉर नथिंग. सेल्फ मेड क्राइसिस बोलते हैं इसको. हाँ, सेल्फ मेड. और मैंने अभी, मेरे को एक टॉपिक याद आया कि बचपन में ऐसा होता था. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है, ठीक है, मैं बैठी हूँ, मेरी बेंच पार्टनर वो है, ठीक है, मैं पूरे सब सब्जेक्ट्स में या पीरियड्स में उसके साथ ही बैठी हूँ. मैं रिसेस में, ब्रेक में गई किसी और दोस्त से बात करूँ, तो ये पर्सन इज लाइक, व्हाई आर यू टॉकिंग टू दैट पर्सन? Possessiveness. वो फ्रेंडशिप पोजेसिवनेस मुझे कभी Not a समझ नहीं friendly आया. friend. यू माइट हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, इवन आई एम अलाउड टू हैव डिफरेंट फ्रेंड्स. ऐसे नहीं होना चाहिए. आई थिंक ये बचपन में था, बट ये अभी भी होता है. अभी भी है, जिसको आदत हो गया है. आई थिंक समवेयर आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, बट नॉट इन द वे. नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग. ऐसा यू कैन हैव द लविंगनेस फॉर दैट पर्सन कि हाँ ये मेरी दोस्त है, मेरे को टाइम दे, मुझे टाइम दे, मेरे साथ रहे. बाकी शी कैन ऑब्वियसली हैव मोर फ्रेंड्स, मोर इफ शी हैज मोर फ्रेंड्स ओनली देन शी रियलाइजेस माय प्लेस इन हर लाइफ. करेक्ट. 10 लोग रहेंगे तो समझेगा उसमें से एक अपराजिता है. इफ आई डोंट लेट आगे वाला पर्सन टू ग्रो, मेक मिस्टेक्स, एंड इफ आई डोंट लेट देम हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव मी एट देयर बैक, it will not be mutually growing. Importance नहीं समझ में आएगा. You're losing your essence in that friendship in that way. Until unless, I think, not even in friendship, in entire life, जब तक वो आगे वाले का craving नहीं होता है ना, you can not understand उसका value. कि right moment पे जब भी चाहिए तुम्हें, तब वो person नहीं हो. वो एक चीज है. and then like वो over presence जब दे देता है आगे वाला, and then you take it lightly. हाँ. That is a very bad space, because वो एक बार hit हो गया कि हाँ इसने मुझे lightly ले लिया है, तो you also take yourself back कि नहीं, I will not be available 24/7. I was just doing it for you, your sake. वो गिनाने लग जाते हैं ना जब कि नहीं मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया. That's where, you know, these are silent things that, you know, spoil the friendships. Yeah. These are the things that should be taken care about. छोटी चीज है बट बहुत इम्पोर्टेंट है.
एंड मुझे लगता है स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यही हद तक तुम्हें एकदम तुम्हारी पक्की यारी वाली दोस्ती रहेगी, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर हम जैसे बड़े होते आगे हैं, जाएंगे pass out देयर होते हैं, नो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नहीं बनते, तुम्हें कलीग्स मिलते हैं, तुम्हें Acquaintance, पार्टनर्स yes. मिलते हैं, बिजनेस पार्टनर या जो भी है वैसा, बट हम इतना मतलब बहुत रेयरली होता है। यू कैन नो पीपल बट वो ऐसा वो बोलते हैं ना फ्रेंडशिप वाला वैसा नहीं होता एकदम कि कुछ बुरा हो गया तो आई कैन कॉल दिस पर्सन, ऐसा जनरली नहीं वेरी होता। रेयर। हम ऐसा देखते हैं सीरीज में देख लेंगे या वेब सीरीज एनीथिंग, बुक्स में भी कभी कभी दिख जाता है कि यू गेट टू नो अ पर्सन एंड इट इज डू और डाई फॉर दैट पीपल, बट बहुत रेयर है। रेयर नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है ना, हम उतने हद तक ग्रो हुए रहते हैं, एंड वही तू बोल रही है कि हम एक सर्टन माइंडसेट से, एक सर्टन पर्सपेक्टिव से ग्रो हुए हैं, एंड अचानक से कोई दूसरा वाला थिंकिंग वाला आया एंड मैच नहीं किया, तो वी डोंट वेस्ट आवर टाइम पुटिंग अगेन एफर्ट्स इन दोस, नहीं वर्क किया हम आगे बढ़ते हैं। वो एज में उतना टाइम Time एफर्ट था। देने का ये रहता है कि हाँ। वो एक तो डेलिकेट रहता है, करेक्ट। तो हम उसमें एफर्ट लेते हैं। अभी लाइक टुडे इफ यू एंड मी आर देयर एंड देयर आर सम फ्रेंडशिप्स दैट वी फाइंड कि इट्स नॉट इतना ये एंड यू कैन इट cutting off is yet easier than that those days. वहाँ we were trying कि let's keep it together, let's keep it intact, जो आज भी करते हैं, but वो clarity आ गया ना अभी, सेल्फ वर्थ पता चल गया, is it worthy, should I do it, not worthy, it's just consuming my mental space and time, energy, बराबर it's not bringing good to any one of us, तो cutting off is easy now. At that age when you keep intact friendships intact, that means you have undergone many things, you're overlooking many things and yet staying together. हाँ, hence वो friendships फिर लंबी चल जाती है because बहुत effort डाला रहता है। we see each other from scratch, बहुत चीजें overlook करके हम आगे बढ़ते हैं, तो वो चीजें फिर matter नहीं करती eventually आगे। correct, and you evolve together as people. It's very important to understand that. अभी इसके आगे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा वो एकदम मेरा एकदम जिगर का टुकड़ा वाला फ्रेंडशिप तो ढूंढना भी नहीं चाहिए वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ आई एम इन सर्च ऑफ फ्रेंडशिप, नहीं कांटेक्ट मी इफ यू आर रेडी। वही तो नेचुरली हुआ तो हुआ, नहीं तो यू कांट हैव जो भी होना लाइक मेक फ्रेंड्स एट दिस एज वाला चीज सब वो स्कूल एज में ही खत्म हो जाता है। इसके आगे इट इज जस्ट लक बाय चांस, क्योंकि अपना इतना एफर्ट एनर्जी दे दिया है हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए है, तो अभी ऐसा लगता है कि व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम पुटिंग मोर एफर्ट, अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। हाँ, वी डोंट हैव टाइम नहीं होता, करेक्ट, अपना लाइफ जितना आगे जाते हैं उतना टाइम कट हो जाता है। You don't have time for people. You want people, but you don't have time for people. No, उससे मुझे realize हो रहा है that we should talk about the efforts and activities in short that can help you retain your friendships and keep the life of your friendship. मुझे ऐड करना है, जैसे हमने रिसेंटली नहीं, चल 2-3 हफ्ते पहले वो आर्ट डेट रखा था। Totally. वेरी नाइस, It was needed. I think college हमारा मई में खत्म हुआ है। हाँ, एंड उसके बाद इट वाज आई थिंक अगस्त व्हेन वी डिड दैट। ऐसा नहीं कि हम लोग टच में नहीं है, हाँ, ऑनलाइन बात हो रही है, वी आर ऑन कॉल्स कभी बात कर ले रहे हैं, हंसी मजाक है, बट दैट फिजिकली मीटिंग एंड गिविंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू यू नो कीप द फ्रेंडशिप अलाइव। वैसा वो इट इज सेड कि physically meeting, spending time with each other, there is some I think chemical inside our body which gets activated by that, which is good and healthy. हाँ, that keeps alive रहता है and you feel good, वही feels worth it and feels worthy. को हंसी क्यों ये खाना खाने के बाद फूड हाई हो गया है भाई, मेरे को ना तू बात कर रही है पता नहीं मेरे को हाँ, मेरे को बात करने गए वही जैसे हमने भी किया था वो आर्ट वाला प्रोडक्टिव डेट, तो मुझे ऐसा लगा कि
ऐसे चलो गप्पे तो हम हमेशा मारते हैं, बट एक साथ में की हुई एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है रिलेशनशिप्स में. और ऑल्सो उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्टिस्टिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ. कि मैंने जैसे रील्स बनाना चालू किया, रील्स नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चालू किया, फिर मैंने स्केचिंग चालू किया. यस, बाहर वो बहुत जा मतलब रही यू थी. बेसिकली और इम्प्लाइंग कि जो फ्रेंडशिप्स हेल्प यू ग्रो. हाँ, सो यू आर राइट कि जो फ्रेंडशिप्स हम लोग को अपलिफ्ट करते हैं, फीलिंग ऑफ ग्रोथ देते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट. तो आई थिंक मेरे पास वैसे फ्रेंडशिप एक्सपीरियंसेस है ना, तो आई कैन समवेयर रिलेट टू इट कि कहाँ कभी कोई फ्रेंडशिप डिग्रेड कर रहा है, कभी कोई फ्रेंडशिप अपग्रेड कर रहा है. डिग्रेड एज इन यू स्टार्ट टू लूज योर ओन सेल्फ इन द फ्रेंडशिप, trying to keep up and just to maintain the friendship for its sake. फिर खुद का एनर्जी भी इतना चले हाँ. जाता है जस्ट टू कीप इट अप. वो keeping up with it is itself a task then. फिर वो इंटरेस्ट चला जाता है and you do not find it worth it to spend time. मेंटेन. हाँ, वो भी है. तो अपग्रेड एज एन ऐसा नहीं कि बेनिफिशियरी पर्पस के लिए हम लोग दोस्ती करें कि नहीं तेरा मेरे को फायदा पैसा चाहिए, पैसा पैसा मिलेगा तो फायदे का, वैसा भी नहीं है. It's like mutually you should feel good with each other. एंड अपग्रेड में ऐसा भी होता है कि व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद दैट पर्सन, तो उसके कुछ अच्छे क्वालिटीज आल्सो यू पिक अप. Like it's not कि it is always coming with inheritance from your family or something. Some things you evolve, and if it aids your evolving, then it is very good thing. Somewhere it is also important. तो वही efforts लेना तो बहुत ज़्यादा important है friendship में. It helps to keep it alive. Also communication. Totally. Everything relies on the communication part somewhere and on the right time. Correct. सही टाइम पे सही चीज बोलना बोलो. आना चाहिए. And also in convey it in a proper way. ऐसे नहीं, it shouldn't come from चुभना भी anger. नहीं चाहिए हाँ. या किसी और के मुंह से भी नहीं आना चाहिए. हाँ, because you said कि वो डिसलाइक के भी फेज होते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि वो बात किसी के मन में बैठ जाए कि ये ऐसी बातें करती है. देयर इज अ गुड वे टू टेल आल्सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग. ट्रू, लाइक ऐसा जानबूझ के किसी को आगे वाले को हर्ट होए वैसा वे में भी नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू कन्वे योरसेल्फ टू द पर्सन इन फ्रंट एंड सेट बाउंड्रीज ओवरऑल. आई थिंक मेन पार्ट ऑफ द एंटायर एपिसोड comes now. We are going to decode certain myths about friendship. I have a list of myths over here with me, so let's try to decode it. So the first myth here is the more you have, the better. हाँ, we spoke about quality over quantity. Yeah. वो तो स्कूल में पता चल जाता वो है. आई थिंक एज के साथ समझ में आती है कि लाइक इट्स नॉट क्वांटिटी, इट इज क्वालिटी. दो हो रहे बट अच्छे रहे. दो एक रहे जितने रहे, मतलब अच्छे रहे. शुड नॉट कंज्यूम योर गुड स्पेस. क्योंकि जितने लोगों से तुम मिलो, जितने लोगों के साथ तुम फ्रेंडशिप करो, उसका ये मतलब नहीं है कि एवरीवन विल विश गुड फॉर यू. ऐसे कम होता है जनरली. एंड उन्हीं लोगों को तुम पास में रखो जो सच्ची में तुम्हारे वेल विशर हो, आगे बढ़ते हुए देख पाए. वो ऐसे नहीं कि अरे ये आगे बढ़ रहा है, तो होता है ना कभी कभी मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, जस्ट स्टार्टिंग फॉर द सेक ऑफ इट कि वो कर रहा तो मुझे भी करना है. करेक्ट. इंडिविजुअलिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. देन कम्स कि मेन एंड वुमेन कांट बी फ्रेंड्स. ये हाउ इज दिस अ मिथ? आई डोंट इवन नो दिस. कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते, बट इट इज नॉट करण जौहर फिल्म. कम ऑन, इट कैन नॉट बी लाइक दिस. वही ऐसा ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स स्कूल के बच्चे भी इवेंचुअली दे मेक फ्रेंड्स आउटसाइड देयर like general way of life, so it is fine. It is completely a myth, it is not true. And also मैं ये बोलना चाहूँगी कि having opposite, अभी मेरे भी कितने दोस्त थे of opposite gender and we have pure friendship, you know. And मुझे लगता है कभी कभी हमें opposite gender के साथ friendship करना चाहिए just to have their perspective. Balanced outlook होना is important. I think for any particular topic there are always different perspectives, especially when it comes to gender wise. If we say a thing, particular thing जो जिसको लड़का एक तरीके से देख रहा हो, a girl sees it in a very different light. Correct. It somewhere also helps uplifting your way of looking at things. So it is good. And also we come to know what
problems they face as a gender. ऐसा भी होता है कभी कभी, क्योंकि सिर्फ लड़कियां दोस्त होके हमें नहीं पता चल पाता कि अगर हमारा कोई भाई रहेगा या फिर कोई बड़ा रहेगा वो क्या फेस करते हैं. हाँ, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि ऐसे opposite gender friends होना is a good thing. It is good in many ways. It's just that कि intentions pure होने चाहिए and it shouldn't be harmful to you. हाँ, and safe space होना चाहिए तुम्हारा ऐसे. Not crossing the boundaries. Correct. And also, you know, having that mutual understanding with each other. Next comes very, you know, इसका answer I think सबको पता है. They always last forever. It's not true, I think. Nothing lasts forever. Forever, of course. And I think आधी चीजें तो efforts पे आ जाती है. How much are you able to go for that particular thing? How far can you go for it? मैंने सुना था कि if you take care of things, it lasts. But it's not only for things, it's for people also. कि अगर तुमने उतने efforts लिए या try किया and वो mutually हो रहा है, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता. What is there? वो तो कुछ है ही नहीं hindrance बीच में. You always have to have a best friend. नहीं. Again, हमने शायद इसके ऊपर पहले ही बात कर ली है. Like it is BFF is not. It is overrated. It has to be more about how like there are I used to मैंने अभी recently एक कुछ article पढ़ा जिसमें they have classified friendship. Oh. Casual friendship, like surface friendship, and then close friendships. Best friend is actually overrated for me. और ठीक है, in a good way it is okay to have a friend, क्योंकि हमें कोई तो रहता है कि जिसके साथ हम शेयर कर पाए चीज़ें या फिर कन्फाइड कर पाए. इवन अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें तो कोई सुनने वाला होना चाहिए. इन दैट सेंस आई थिंक यू शुड हैव अ फ्रेंड जस्ट टू ओपन अप. A good friend. हाँ. Best friend as a tag is overrated for me. But you should have only one best friend. ऐसा तो नहीं होता है. हर friend के साथ तो अलग equations होते हैं. किसी के साथ वही the way I said it before, balancing factor आ जाता है. कई चीज़ में one is extra, other person is a little less. तो it should be balancing. And also there are few topics जो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, कुछ फ्रेंड्स के साथ इतना वो ये वेवलेंथ नहीं बैठता. तो अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा दूसरे वाले दोस्त इनकॉम्पिटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम कुछ और चीजें जो उनके साथ डिस्कस कर पाएंगे, जो वो डिफरेंट फ्रेंड्स का डिफरेंट पेरिफेरल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फ्रेंड किस टाइप का फ्रेंड है. लाइक आई हैड अ स्टोरी विद इन कॉलेज जहाँ पे दैट फ्रेंड ऑफ माइन कंपेयर्ड मी विद अनदर फ्रेंड ऑफ हर्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट्स. That particular friend of hers used to call her a lot and everything. But for me, I feel it is not just about constantly getting back to each other on calls like, hi, how are you? Hi, where are you? Hi, what is this? I think at the time of need, you should be there. Correct. What I believe is कि तुम अच्छे समय में हो ना हो doesn't matter. But अगर कोई कुछ फेस कर रहा है डिफिकल्टी तो आई थिंक यू शुड बी देयर. Yeah, like friend in need is friend in need at the end of the day. It's not that कि 24/7 तुम सिक्योरिटी या ऐसा वॉचमैन जैसे एक दूसरे के साथ रहो. वॉचमैन जैसे like हाँ अभी कुछ हुआ क्या? Let me help you. Not like that, but there you know emotionally and mentally you should be present in that person's life. They should feel secured. एंड उसके लिए बार बार अश्योरिटी आफ्टर एवरी आवर अश्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं तू ही है मेरा दोस्त. It is again degrading your value in that person's life somewhere. It's not कि आपको अलार्म जैसे थोड़े थोड़े देर में हाँ भाई मैं हूँ तेरा दोस्त, हाँ मैं तेरा दोस्त तू याद रख मैं हूँ. ऐसा नहीं. It is again you're choking each other in some way. हेल्दी स्पेस में हेल्दी वे में एक दूसरे का इम्पोर्टेंस फील कराना इज वेरी इम्पोर्टेंट. Now the next one is the ending of friendships are easier than with romantic partners. I think हम एक टाइम पे रोमांटिक पार्टनर्स से मूव ऑन हो भी जाते हैं, बट कभी कभी फ्रेंडशिप से मूव ऑन नहीं कर पाते. Until unless it is a friendship that is turning into a romantic interest, that is altogether different topic. Yeah, that is a different topic. But this friendship, I think any day will hurt more because it is more transparent, more
open and you're more vulnerable in that place. तो ऐसा कोई प्लेस जिधर आपको कंफर्ट मिल रहा है, जिधर आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो ऐसा छूट जाए या ऐसा टूट जाए तो इट्स लाइक योर सेफ प्लेस इज गॉन. हाँ, it somewhere hurts really bad. I think more than anything else. I think we just discussed our heartbreaks in friendship. That is exactly this. It is not easy to move on. correct. Next is true friends will be there for you no matter what. Would you like The to? silence is too loud. I think it is subjective. हाँ, Depending कि तुमको किस वे में चाहिए, चाहिए. हाँ. Obviously, most of the time they are there for you. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दे नॉट माइट बी फिजिकली प्रेजेंट बट दे कैन बी जस्ट अ कॉल अवे और अ टेक्स्ट अवे. Correct. कि तुम्हें वो अश्योरेंस चाहिए तो वो है तुम्हारे साथ. जस्ट कि तुम कौन से डिफिकल्टी में हो, दैट ऑल्सो मैटर्स. कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट फ्रेंड माइट बी बिजी, अभी नहीं है, एंड योर डिफिकल्टी कैन वेट. Correct. तो ऐसे भी हो सकता है कि वी कैन रिजॉल्व दिस सम अनदर टाइम. Yes, ऐसा exactly. भी होता है. किसी ने You should राइट किया राइट understand नाउ. why, क्योंकि आगे वाला रोबोट नहीं है. हाँ, You need to understand the boundaries and you need to respect आगे वाले का लाइफ है. मुझे छोड़ के आगे वाले का Life लाइफ है, है. जिस आगे वाले के लाइफ का मैं एक पार्ट हूँ. I might be a part of their life, but I cannot control their life. कि नहीं भाई मुझे जब चाहिए, you have to be there. It is subjective, honestly, Correct. and you need to respect आगे वाले का time. Next is friends shouldn't compare themselves to one another. Oh, this That is is 100% completely true. true. Completely true. Like I said, वो efforts compare करना, friendship के तरीके compare करना, I don't think it's cool. There are people who are call people, जिनको चाहिए रहता है कि constantly call पे रहो, and then there are yeah, people who want constantly text पे Text, रहो, हाँ. and then there are third kind of people who जो are सिर्फ मिलके, हाँ. friendship maintain करते हैं. हाँ. I think for me it is more like texting and a combination of मिलके रहना. Not that big a call person, I think. For you, I think it is all the way हाँ, around. कुछ भी चलेगा. Some मुझे, way, मैं हूँ. सब तरीके से मैं हूँ. I'm there for you. Just text me, I'll be there for you. Friendships should be the same plus feel as connected through new seasons of life. हाँ, हमने बात किया कि हम बड़े होते हैं वैसे हमारे फ्रेंडशिप्स भी ग्रो होते हैं. Yeah. तो नेसेसरीली इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे हम स्कूल में थे, जैसे हमारी फ्रेंडशिप स्कूल में थी, वैसे ही हम जब कॉलेज में गए तो उनके साथ वही सेम फ्रेंडशिप हो. नहीं, It's बिकॉज not possible. वो भी इवॉल्व हो रहे हैं एज पर्सन, फ्रेंडशिप भी इवॉल्व हो रही है. अगर आई फील कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो टाइम पे हमें जो नीड चाहिए वो अगर पूरी हो रही है तो फिर आई थिंक द फ्रेंडशिप विल वर्क. ऐसे नहीं कि सेम ही है. Correct. See, I think as we grow, चीज़ों को लेके आउटलुक ऑब्वियसली इट चेंजेस. तो जो चीज़ें मुझे शायद जूनियर केजी के टाइम का फ्रेंडशिप एंड वो टाइम पे तो कुछ मैटर ही नहीं करता है, वो टाइम का फ्रेंडशिप कैन नॉट बी सेम एज टुडेज फ्रेंडशिप विद फॉर मी. आज के दिन में मुझे 4 चीज़ें और मैटर करेंगी. करेक्ट. वो टाइम पे इट डिडंट मैटर. सो आई थिंक थ्रू सीजन्स ऑफ लाइफ फ्रेंडशिप ऑल्सो इवॉल्व्स. इट कैन नॉट बी जस्ट द सेम, इट कैन बी मोर और लेस द सेम. और ऑल्सो प्रायोरिटीज बदलती है ना, जैसे हम बड़ी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. So the last one for the day, there is a model or ideal way that friendships work. अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव यार. फ्रेंडशिप्स कितने अलग होते हैं. मेल फ्रेंडशिप्स अलग होती है, फीमेल फ्रेंडशिप्स अलग होती है, Group friendships are group different. हाँ. मतलब 2 जन का फ्रेंडशिप, 4 जन का फ्रेंडशिप, it is everything is different. डिफरेंट और अलग. And there is no one way. हाँ. एक गाइडलाइन नहीं है कि like how to make friends, how to work on relationships, how to work on this. It is not one way. बिकॉज सबका नज़रिया अलग होता है, हैबिट्स अलग होती है. कुछ लोग फॉर एग्जांपल उनके लाइफ में कुछ हुआ तो दे कैन हैंडल इट ऑन बाय देमसेल्व्स. Yeah. कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं मैं कुछ बताऊँ या सजेशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए होता है. तो मुझे लगता है कि देयर इज नो ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है कि ये करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो फिर फ्रेंडशिप वर्क होएगी ही नहीं. आई थिंक ये हर जगह मैंने सुना है, लेकिन रिलेशनशिप ऑल्सो पीपल टॉक कि ऐसा कोई सीधा साधा तरीका है क्या कि
टिक जाए. what is the right way to do it. हाँ. There's no right way. You evolve over the period of time, and different people have different friendships. In your friendship, what would be your thing? Like तेरे को जो चल रहा रहेगा वो चीज शायद मुझे नहीं चल रहा होगा. And likewise vice versa. Like what is working for me might not work for you. So there is no one way. I think वो with the period it gets like you know, it evolves over the period of time. You grow from it. You grow together. And if you grow, it works. If you don't grow, it doesn't work. Simple as that. Then again, you have to move on from it. Simple as that. Life बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी करते है. जाओ अच्छे वही हर चीज को पकड़ के cannot गांठ मार के नहीं बैठ सकते हर चीज को. You have to move on from life. So I think we have almost discussed all the you know 101 ways of friendships, dynamics, and everything. What would be your last you know tagline for your friendships and to people, viewers who are watching us, ki if you're having friends, this is one thing that you should obviously do that would you know make your life and aage wale ka life much more easier in that friendship. I think कि don't stretch it, just go with the flow. क्योंकि ऐसे वे में मुझे लगता है कि कभी कभी तुम ओवर ज़्यादा एफर्ट्स डाल के भी खराब कर पाते हो कभी कभी, या फिर लैक ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, या फिर कभी ऐसे होता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो. ये सब चीज़ें जस्ट टू ओवरकम, तुम एक दूसरे का रैपो समझो कि कैसे वर्क करता है सामने वाले के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू अडेप्ट एंड Understanding each other is very important. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार. You get a it gut is not feeling. job that you have to do it in a certain way. It should flow, yaar. raw. At the end, it is raw. It should just happen. It should just happen. Like not in a way कि भाई मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो ये ठीक रहेगा. Calculative नहीं है totally. Totally you cannot do maths in your friendship. It has to be very raw, and yeah, in certain aspects it just happens. You have to let it flow and let it happen. Yes. It's very So important. keep making friends. जो रहे वो रहे. नहीं रहे तो चलते बने. Nice. I think we had a good discussion here Yeah. about friendship and in life and about college also. We should have this more often. I think it's needed. We can also touch upon many other topics here. I think आज तो हमने बहुत detailed you know वही friendly sisterhood talks कर दिया है. But there are obviously more things that we could talk about and in discuss. more episodes ahead. Yes. Which means I do hope that you would join me in my upcoming episodes. Why not? It was really nice having you on my show. Yes, thank you so much. I hope we do it more often and more soon. Yes, we should do it we should do it more soon. Also बकबक तो चलती रहेगी. कुछ भी हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पॉडकास्ट शूट नहीं किया, तो वो पॉडकास्ट ही हम दोनों के लिए. Yeah, in between also ऐसा feeling आता है कि like shit अभी इतना बात कर लिया, ये तो इतना रह गया, ये रह गया. It just happens. It flows. I think this is how friendship should also be and life should also be. It should just flow on. It's a target oriented नहीं है. It is not. थोड़ी है यार. We are not doing job here by maintaining a friendship. It is for your you know mental peace. I think almost a day has gone by with this episode for us. And it doesn't feel like that. हाँ, ऐसे लग रहा है अभी ऐसे just एक घंटे पहले तो भी बात कर रहे थे. It is very casual, but it has taken almost a day for us. I think we'll do it more often. Yeah, more episodes and more things about life. I'm looking forward to come to your show and spill some tea also. Yeah, maybe sip some coffee. Without taking any names. Oh God. Very controversial. थोड़ा ध्यान रखिए. Yeah, we'll work on that. चलिए, we are evolving. है कि नहीं? This is also evolving. Yeah. Thank you for coming on Tea with Thank you so Coffee. much for having me. We'll see you soon. Yes. We क्या बोल रहे हो? I'll see you soon. Yes. Bye.